Yeah, I'll tell the 3-year-old boy that he is an Indian. He always was an Indian, but still in India there were people who had supported Pakistan. I would tell the 3-year-old boy when he becomes 30 that there were people who in fact were responsible for the death of your grandfather because they all the way supported jihad. I will tell the 3-year-old when he gets 30-year-old that there were news anchors who said that I would have loved to in fact believe the Indian army, but I did not because some Ashraf Wani somewhere said that Indian army pulled out. Misinterpret my words. I said I'd like to believe the Indian army, but I will also go by the version that my reporter gives on the ground. You would like, please do not misquote me. You have been caught red-handed. You have been caught. What? No, I'm not misquoting you, sir. Your exact words were, I would have liked to believe my army. And I say, I believe my army. If you believe, you say, I believe. You do not have to say, I like to believe, number one. But I don't want to transgress. Yes. Let me tell you the importance of this picture. I was just saying that when you interfered. Remember that lady representative of Pakistan showing one picture in United Nations, and the picture was a Palestinian woman's picture, and on the garb of the picture she said that this is how we have atrocity in Kashmir. Did you know where the picture come from? The picture came from the Communist Party of India because that picture was used as a poster in Kerala. The Congress and the Communist Party's picture was used in United Nations against India. I want that this picture should become the picture of representation across the globe, that this is what jihadists, Pakistanis and the jihadi supporters, the left, liberal, so Islamists, you are not going to apologize. You are not going to apologize for the kind of lack of empathy that you have shown by labeling this picture with Pulitzer Award. Please show the picture. There was no need for the label. Sorry, sir, the Dia Mirzas and the Dadlanis have to apologize. Okay. The Dia Mirzas, the Dadlanis, the Swara Bhaskars have, where are they? Where are they? Where are their placards? Why aren't they ashamed today to be an Indian? They were ashamed yesterday to be an Indian. Where are they? Okay. ये जो डडलानी और दिया मिर्जा इन्होंने इतनी सेंसिटिव फोटो को आपने क्यों शेयर किया? अच्छा, जब रोहित वेमुला की फोटो को आप शेयर करते हैं तो वो सेंसिटिव नहीं होता है, वो फॉर अ कॉज होता है. जब जॉर्ज फ्लॉयड अमेरिका में उसकी मृत्यु होती है, नृशंस हत्या हो जाती है, आई एम ब्रेथलेस. All these Bollywood starlets become breathless and they hold a placard and they cry. बिकॉज उस समय सेंसिटिविटी नहीं होती है. जब सीरिया का छोटा सा नन्हा सा बच्चा बीच में मरा हुआ उसकी तस्वीर होती है तो उस फोटो को लेकर मोदी जी पे आप अटैक करते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है. जब आप बहुत पुरानी फोटो निकाल के लाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करती हुई मदर, डेड बॉडी ऑफ अ मदर, वो फोटो 2 साल पुरानी थी, उसको अभी लगाकर आप ट्वीट करके कहते हैं कि मोदी यू शुड बी अशेम्ड, तब सेंसिटिविटी कहीं नहीं जाती है. मैंने जिहादियों, आतंकवादियों, लेफ्टिस्ट, सो कॉल्ड लिबरल्स, पुलित्जर गैंग को एक्सपोज किया. इतनी बड़ी आग लग गई है. ये वर्ल्ड वॉर हो रहा है. सारे पाकिस्तानी, सारे स्वरा भास्कर, दिया मिर्जास, डडलानीज, ये कांग्रेसी और लेफ्टिस्ट, और ये बैठे हैं जीएसटी. घनश्याम मेरे को भल्चर बोल रहे थे, भल्चर. अच्छा, जो लिंचिंग की फोटो अखलाक की आप लगाते हैं तो आप पिजन, और मैं जब सही फोटो आतंकवाद का लगा दूं तो मैं भल्चर हूं. आप लोगों की तो पूरी की पूरी पोल पट्टी खोल के हम ऐसे रखेंगे कि आज के बाद Communists, the jihadists, the Islamists, and the Congressies in India attacking me. In fact, number of ministers and well-known cricketers of Pakistan also have started attacking me. So this needs explanation. और मैं हिंदी में भी बोलूंगा क्योंकि वो जो फुआद चौधरी वगैरह है पाकिस्तान में, उनको समझ में आती नहीं है अंग्रेजी. मैं हिंदी में बोलता हूं, अच्छे से समझ पाएंगे पाकिस्तानी भी. देखिए, पुलित्जर अवार्ड का नाम मैंने क्यों लिया? जो पुलित्जर अवार्ड मिला था 3 लोगों को कश्मीर से, जिनको पुलित्जर अवार्ड मिला था, दीज 3 फोटो जर्नलिस्ट, दे हैड shown picture of Indian army in a demeaning light. Yeah, Indian army is an occupying force. Indian army occupies, and in fact that was the citation. The citation stated that Indian army is the occupying force, and they were given an award, and it was reflected and echoed across the globe. Let me tell you, Navika, today this picture of a traumatized 3-year-old boy for whom we all are crying. This picture is not just a picture; it is a story of 70-year-old scarred India. ये भारत माता की कश्मीर की कहानी है, जिस भारत माता के आंचल को 70 वर्षों से पाकिस्तान के जिहादियों ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने और पाकिस्तान के कुछ चमचे जो हिंदुस्तान में बैठे हैं उन्होंने फाड़ा है. ये एक तस्वीर नहीं है, ये एक कहानी है, 1000 शब्दों की कहानी है.
और नाविका जी कहां, ये विशाल डडलानी, ये दिया मिर्जा, ये पाकिस्तान के मंत्री, ये मुझ पे अटैक कर रहे हैं, ये स्वरा भास्कर, ये सब मुझ पे अटैक कर रहे हैं। कहां गए उनके प्लेकार्ड्स, कहां गए? Where are their placards today? All these shameful creatures would have crept out of the rat holes with a placard that I'm ashamed. I'm ashamed to be an Indian. Look, because someone is lynched. Well, yes, even I'm ashamed. If someone is lynched or someone is raped, I'm also ashamed. But why this selective holding of placard? Today when I point a finger towards Pakistan, Pak-sponsored terrorism, where are these creatures? None of these creatures are visible anywhere. These Pak-sponsored friends sitting over here in India. और सबसे बड़ी बात है, संबित पात्रा ने ये फोटो किया, दिस फोटो शुड नॉट बी शेयर्ड। लेट मी टेल यू, दिस फोटो शुड बी शोन इन द यूनाइटेड नेशन। इस फोटो को यूनाइटेड नेशन में दिखाना चाहिए। यू रिमेंबर नाविका, देयर वाज अ फॉल्स फोटो ऑफ अ पैलेस्टीनियन वुमन शोन बाय पाकिस्तान अबाउट atrocities being done by Indians on Kashmiris on the floor of United Nations. That was a false photo, and that photo was because the Congress party and the left had tweeted that picture over here in India. Pakistan had picked up that picture and shown in United Nations. Here is the real picture which India should show on the floor of United Nations. देखो ये करता है पाकिस्तान, ये आतंकीस्तान करता है। कहां? अरे चुप रहिए, बैठिए, आप शांति से बैठिए, कुछ मत बोलिए। आप क्या तकलीफ हो रही है? क्या तकलीफ हो रही है कि आपकी जो कहानी है वो सही नहीं हुई? Because you pointed fingers at our forces, at our CRPF men, but actually they saved this child. बहुत भरा बैठा हूं, मुझे 10 सेकंड और Sahiba, it said that do in Rome as the Romans do. Now because एक सेकंड रुकिए नाविका जी, मुझे 10 सेकंड और चाहिए, सिर्फ 10 सेकंड और ज्यादा नहीं चाहिए, बिकॉज मैं बहुत भरा बैठा हूं, मुझे बोलने मैं भी हिंदी में बात करूंगा। इनकी आवाज जरा कम करिए, मैं जिहादियों से बात करना नहीं चाहता हूं, बिल्कुल जिहादियों और पाक सपोर्टर से बात करिए। एक मिनट डॉक्टर पात्रा कुछ। पुलित्जर अवार्ड लिखा मैंने उस फोटो के ऊपर। पता है, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, ये फोटो पूरे विश्व के हर घर में हमें भेजना है, हर एक घर में भेजना है। ये फोटो नहीं है, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, एक संदेश है, मैसेज है कि जिहाद और पाकिस्तान भारत के साथ क्या कर रहा है, ये फोटो कहती है। चिल्ला चिल्ला कर ये फोटो कहती है, और ये असली फोटो है, ये वो नकली फोटो नहीं है जो फिलिस्तीन की लड़की की नकली फोटो को दिखा करके पाकिस्तान, हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश यूनाइटेड नेशन में करता है। वो नकली फोटो नहीं है, ये असली फोटो है। 3 साल का मासूम, मुझे इस मासूम का नाम नहीं पता, मुझे इस मासूम का धर्म नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं इसका धर्म क्या है, मगर अपने दादा के छाती के ऊपर ये मासूम बैठा हुआ है। दादा मर गए हैं, खून बह रहा है, इस मासूम को इंडिया की आर्मी प्रोटेक्शन दे रही है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। और कुछ लोग मेरे ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलित्जर अवार्ड। अरे भैया, उन तीनों को पुलित्जर अवार्ड मिला था जो ये फोटो भी मैं लेके आया हूं। क्या फोटो था पुलित्जर अवार्ड में, दिखाना चाहूंगा, दिखाइए, देखिए, ये फोटो को पुलित्जर अवार्ड मिला था। किस प्रकार हिंदुस्तान की सेना की वैन के ऊपर चढ़ के आतंकी और जिहादी पत्थर मार रहे हैं। ये फोटो बहुत अच्छा लगा था दुनिया को कि वाह, कितना सुंदर ये फोटो है, कितनी सुंदर ये तस्वीर है, इसको अवार्ड दे। ये फोटो को तो कोई इस फोटो को जब मैंने ट्वीट किया ना, दिया मिर्जा निकल के बाहर आ गई, वो डडलानी कौन सा है, एक डडलानी निकल के बाहर आ गया, वो शहला रशीद निकल के बाहर आ गई। शेम ऑन यू संबित पात्रा। नहीं, सुन लीजिए प्लीज, अभी थोड़ी देर के लिए मुझे खुला छोड़ दीजिए कि शेम ऑन यू संबित पात्रा, आप एक फोटो को इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वल्चर बन गए हैं। दिया मिर्जा जी, कहां गई आपकी वो बॉलीवुड की गैंग जो एक प्लेकार्ड पकड़ के आई एम अशेम्ड टू बी इंडियन बिकॉज मोदी इज किलिंग सो एंड सो पीपल, वो सब जो करते थे, कहां गई? वाई आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म? आप जिहाद के लिए अशेम्ड क्यों नहीं है? मस्जिद में से आतंकवादी फायरिंग करते हैं, लोग मर जाते हैं, मासूम बच्चा हमेशा के लिए अपनी दादा को खोता हुआ देखता है। दिया मिर्जा आप अशेम्ड नहीं है? ये बॉलीवुड गैंग अशेम्ड नहीं है? डडलानी तुम अशेम्ड नहीं हो? तुम लोग धिक्कार योग्य हो, धिक्कार योग्य। आप लोग जिस प्रकार से पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस को इंडिया में बुलाना चाहते हो, उनके साथ खड़े हो जाते हो, जिहाद के खिलाफ एक शब्द निकलती नहीं है, और इस पर आप हमारे पे पत्थरबाजी कर रहे हो। मैं एक सवाल पूछता हूं, जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु हुई अमेरिका में, आई एम ब्रेथलेस, ये सारे लोग, ये दिया मिर्जा, ये डडलानी, ये शहला रशीद, आई एम ब्रेथलेस, ये यहां पर इनका सांस फूल गया था। जब वो क्या ना, एक संदेश देना है, पूरे विश्व में एक संदेश देना है कि रेसिज्म होता है। और जब आप याद करिए, एक सीरिया का मासूम बच्चा बह के उसकी डेड बॉडी आई थी समुंदर के किनारे में, यही दिया मिर्जा, यही डडलानी, यही शहला रशीद। ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। और जब अपने देश में
एक मासूम बच्चे की सच्ची तस्वीर है, उस समय इनके मुंह में दही जम गई है। जिहाद के खिलाफ एक आवाज नहीं निकलेगा क्योंकि वहां उन्होंने धर्म ढूंढ लिया है। उसके खिलाफ कुछ कहेंगे तो इनका पैसा कट जाएगा, कोई दही नहीं। अशोक जी, मैं आपकी तरफ से भी जवाब दूंगा, आप तो दीजिएगा ही, मैं भी देता हूं। देखिए, इफ्तिकार साहब एक बहुत जाने माने और सुलझे व्यक्ति माने जाते हैं, मगर आप आज उनको सुन रहे थे वो क्या कह रहे थे। पहले तो उन्होंने कहा कि घर वाले जो मृतक है उनके घर वाले क्या कह रहे थे। कश्मीर में घर वालों के हाथ में कोई ऑप्शन है क्या? देखिए, जिस प्रकार से ये सेपरेटिस्ट और ये आतंकवादी घर वालों को धमकाते हैं, आप अगर उनके मुताबिक आप नहीं बोलेंगे तो आप भी जीवित नहीं रहेंगे। इस प्रकार की कोशिश रहती है तो शुक्र है कि हमारी आर्मी सबको प्रोटेक्शन दे रही है, वरना किसी का भी। इफ्तिकार साहब भी अगर नहीं बोलेंगे, मैं मैं आपके बीच में नहीं बोला आपसे। इफ्तिकार आप कह सकते, इफ्तिकार जी एक सेकंड, इफ्तिकार जी जस्ट अ सेकंड, यू आर सीनियर बाय एज, आप थोड़ा सा लिहाज भी करिए और कर्टसी भी दिखाइए। हम बारी बारी से बोले, एक सेकंड बारी से बोलेंगे, दिस इज नॉट द वे। ये पत्थरबाजी संबित के बाद आप बोलेंगे, मैं आपको सम्मान देके बात कर रहा हूं, आप सुन लीजिए। जी बिल्कुल। इफ्तिकार जी ऐसे नहीं होता है, शांति से सुनिए। देखिए, अगर इफ्तिकार जी भी आतंकवादियों का साथ नहीं देंगे तो आतंकवादी इनके पीछे भी पड़ जाएंगे। आजकल खैर सिनेरियो चेंज हो रहा है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आर्टिकल 370 के हटने के बाद जिस प्रकार का सिनेरियो चेंज हुआ है वो हम देख रहे हैं। दूसरी बात, मुझे बहुत दुख हुआ, इफ्तिकार जी ने अभी मेरे भाई अशोक पंडित को कहा कि ये अशोक पंडित क्या बोलेगा, ये तो 1960 में ये तो 1960-80 कभी भाग गया था। भाग नहीं गया था इफ्तिकार जी, आप लोगों ने मार दिया था, मां बेटियों का रेप किया था, मस्जिदों से अनाउंस करवाई थी कि अपनी बेटियों को और अपनी औरतों को यहां छोड़ दो और आदमी यहां से चले जाए, या तो कन्वर्ट हो जाए, या तो मर जाए, या तो चले जाए। आप लोगों ने आप लोगों ने जिहाद किया था उस समय, और फिर भी यू हैव द ऑडेसिटी, आप यहां के बोलते हैं भाग गया था। यही तो गड़बड़ी है, और इसी को तो एक्सपोज करना है कि जो लोग जिहाद करते हैं वो अपने आप को हीरो सोच रहे हैं, और हम जैसे लोग और अशोक पंडित जैसे लोग जो जिहाद को एक्सपोज करना चाहते हैं, ये लेफ्ट इस्लामिस्ट ब्रिगेड जो है ये हम पे अटैक कर रही है। बहुत हो गया भाई साहब, 3 साल के मासूम से किसी को क्या दिक्कत होगी? ये सोनिया माता की नहीं, सुनिए, ये सोनिया माता की सरकार नहीं है जो दौड़ के जाके वेटिकन में कंप्लेन कर देगी। चलिए ठीक है संबित, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं इफ्तिकार मिर्जा साहब आपको जवाब देने का मौका दूंगा। याद रखिए, पता है मैंने जब ये फोटो पहली बार ट्वीट किया पुलित्जर अवार्ड, और उसके बाद बहुत लोगों ने मेरे पे अटैक किया, फिर मैंने उनको जवाब दिया। मुझे एक फोन आया, एक सीआरपीएफ के जवान का फोन आया, उसने कहा साहब हम लोगों ने अभी देखा कि आप ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक में भी वही ट्वीट्स जा रहा है, हमने देखा, और वो जो जवान वहां खड़ा है, आप फोटो भी दिखा रहे हैं, जो बुला रहा है बच्चे को अपनी तरफ, उसका नाम पवन कुमार है। आप उसका नाम भी लीजिए साहब, क्योंकि हमको अच्छा लगता है। हम लोग अपनी जान को, हमारे घर वालों को छोड़कर हम यहां पे हैं, हम किसी की चिंता नहीं करते हैं। उस बच्चे को बचाना, उसके सबको बचाना, ये हमारा दायित्व है। मगर जब हमारे ऊपर ही सवाल उठाया जाता है, हमारा मोराल बहुत डाउन होता है। आप नाम लीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। मैंने तुरंत पवन कुमार जी का नाम ट्वीट भी किया, मुझे नाम पता भी नहीं था कि वो सीआरपीएफ के हैं, उनका नाम पवन कुमार है। आप देखिए, हम जो ये डिबेट्स करते हैं और ये जो ट्वीट्स करते हैं कि इंडियन आर्मी ने मारा, उमर अब्दुल्ला के जो ट्वीट्स हैं, यहां जो इफ्तिकार का आप बता रहे हैं, कितना मोराल डाउन होता है पता है लोगों का। दूसरी बात, यहां इफ्तिकार साहब ने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या कर दिया कश्मीर के लिए, क्या चेंज कर दिया, अभी भी धमका रहे हैं। गिलानी साहब ने परसों ही रिजाइन किया है ना, वो आपके जो गिलानी है, जो सेपरेटिस्ट लोगों के सब हेड बने हुए थे, और बाकी सारे सेपरेटिस्ट अभी कोई भी नहीं है, सारे जेल के अंदर हैं, सारे गए, गियो काम से हो गया है उनका। कितने आतंकवादी मारे जा रहे हैं वो आप देख रहे हैं ना, रोज कैसे दर्जनों के भाव से। और दूसरी बात है, आपने कहा कि आपकी आवाज दबाई जा रही है। साहब, आपकी आवाज नहीं दबाई जा रही है, सबसे ज्यादा आप ही चिल्ला रहे हैं, अभी भी चिल्ला रहे हैं। लास्ट में मुझे तो हैरानी होती है, आपने कहा ये फोटोग्राफी क्यों की गई, क्यों नहीं की जाएगी फोटोग्राफी साहब? ये फोटोग्राफ हिंदुस्तान का आज बहुत बड़ा एक सबूत है पूरे विश्व को दिखाने के लिए कि देख जिहाद क्या होता है, देख पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादी क्या होता है, किस प्रकार हमारे जवान वहां बच्चों को बचा रहे हैं, और किस प्रकार पाकिस्तान लोगों को, निहत्थे लोगों को मार रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनको मार रहा है। अमन भाई, मैंने पुलित्जर अवार्ड क्यों ट्वीट किया? किसी को, ये जो लिबरल है, ये जो जिहादिस्ट गैंग है, ये जो खान मार्केट गैंग है, ये इस फोटो को दबा देंगे कारपेट के नीचे। आपका, मेरा, अशोक पंडित जी का ये कर्तव्य है कि हम इस फोटो को जीवित रख के दिखाएं, पाकिस्तान को एक्सपोज करें। 20 सेकंड